Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the course of Digital Image Processing, and today is our last lecture and we will talk about object recognition. So in the last lecture what we have done, in the previous lecture we understand what is the image understanding and how we can represent the image. So this image we can represent in different methods, and these methods are, one of them is a boundary method and the other one is region based. So we can represent the image in a form of a boundary because if important points that we need to compare is boundary, then in that situation we use only the boundary information and we represent the object or maybe the complete image in a form of a boundaries. And another one is based on region. So if we want to keep the information of the regions, because we want to know what is these regions and we want to identify the regions based objects, then in that situation what we will need, we need to represent the image or maybe the objects in a form of a regions. So once we represent it, then we need to have the descriptions of these representation, because we want to identify what is this representation so that we can compare it. Then if it is the angles, or if it is the width of the objects, or if it is the color, so how many colors and which are the scales used, if it is RGB or if it is HSY or any other kind, then what kind of information is there. So we need to describe this representation so that we can use it later on. So normally these descriptions are also based on boundary based, because the representation is on boundary based segmentation, so that's why the description will be also boundary based. And another type can also be region based, because the representation is in region based, so that's why what we do, we also have the description as a region based description. So today what we will learn, we will see that what is object recognition, and for that what we need pattern classes and pattern recognition, and then what are the basic object classifier that we can use, and that are structural methods and decision theoretic methods. So we will understand all these methods. So the first thing is pattern and features. What are patterns that we want to know, and what are the features? Pattern classes. A pattern class is a family of patterns that share some common properties. Region to assign patterns to their respective classes. तो हम यहाँ पर पैटर्न उसको कंसिडर करते हैं कि कोई एक ऐसा पैटर्न जिसको हम एज अ फीचर्स भी देख सकते हैं कि वो ये हो कि वो सारे उन एक ख़ास किस्म के ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन हो. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, एप्पल हम लेते हैं, तो वो एप्पल अगर एक ख़ास टाइप का एप्पल है जो रेड एप्पल है, तो उन रेड एप्पल के कुछ ख़ास कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगी कि वो उनके कलर्स वेरिएशंस कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, उनके साइज़ कैसे हो सकते हैं. तो ये एक ख़ास किस्म के पैटर्न हम उसको कॉल करेंगे कि ये एक ख़ास किस्म का पैटर्न है. फिर हम पैटर्न रिकग्निशन किसे कहेंगे या ऑब्जेक्ट रिकग्निशन किसे कहेंगे. हमारे पास डिफरेंट किस्म के एप्पल्स हैं जिसमें हमने डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लिया. अब हम देखना चाह रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे पास इमेज में, उसमें कितने रेड किस्म के एप्पल्स हैं फॉर एग्जांपल, और कितने ग्रीन किस्म के हैं और कितने येलो किस्म के एप्पल्स हैं. तो हम इनको अगर रिकग्निशन उसकी करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये हम अब ऑब्जेक्ट रिकग्निशन कर रहे हैं या पैटर्न रिकग्निशन कर रहे हैं. पैटर्न हम इसको इस वजह से कहते हैं कि उसमें वो जो पैटर्न है वो ख़ास किस्म के डिस्क्रिप्शंस है, इंफॉर्मेशन है जिसको हम काउंट करते हैं. देयर आर कॉमन पैटर्न अरेंजमेंट्स यूज्ड इन द प्रैक्टिसेस आर वेक्टर्स, स्ट्रिंग्स एंड ट्रीज. तो हम इन तीन किस्म के मेथड्स को यूज़ करते हुए पैटर्न रिकग्निशन करते हैं. तो हम अब ऑब्जेक्ट रिकग्निशन करना क्यों चाहते हैं, बेसिक क्वेश्चन अगर ये है कि ऑब्जेक्ट रिकग्निशन की ज़रूरत हमें क्यों है, तो हम देखते हैं कि जितने भी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं मोस्टली
हम जब कंप्यूटर विज़न में या इमेज प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं तो उसकी रिकग्निशन के लिए करते हैं। हमने जो स्टार्ट में लेक्चर देखा था तो उसमें हमने ये देखा था कि इमेज प्रोसेसिंग के यूजेज क्या है, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि हम बहुत सारे इमेजेस को अगर लेते हैं मल्टीपल एरियाज से तो उसकी मल्टीपल एप्लीकेशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक वीडियो इनपुट है जो कि अल्टीमेटली फ्रेम बाय फ्रेम इमेजेस होती हैं। तो उस इमेजेस में हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि कौन जो है वो फॉर एग्जांपल इंट्रूजन कर रहा है किसी ख़ास एरिया के अंदर। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें कि क्या वो जो पर्सन है जो इंट्रूजन कर रहा है वो ऑथराइज है या नहीं है। तो फिर हम फेस रिकग्निशन की तरफ जाते हैं या ऑब्जेक्ट रिकग्निशन की तरफ जब जाएंगे तो हम पहले ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये ऑब्जेक्ट जो है ये ह्यूमन है या एनिमल है या कोई व्हीकल है। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऑब्जेक्ट रिकग्निशन करें। तो जब ऑब्जेक्ट रिकग्निशन करेंगे तो उसके लिए हमें ये सारे प्रोसेसिंग करने होंगे। सारे इमेज प्रोसेसिंग क्या है, जब हम देखेंगे कि हमने इमेज को स्मूथ करना है, उससे नॉइज़ रिमूव करना है, उसको फ़िल्टर करना है, फिर उसके बाद उसकी सेगमेंटेशन करेंगे। सेगमेंटेशन से हमारे पास उसकी रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। फिर हम जब उसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन लाएंगे, फिर उस डिस्क्रिप्शन की बेस पर हम उसकी रिकग्निशन करेंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं माइंड के तौर पर, अपने ह्यूमन के तौर पर देखते हैं तो ह्यूमन जो है वो बहुत ईजीली किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेता है। लेकिन जब हमें मशीन के थ्रू करना होगा तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होगी और वो सारी इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस करते हैं और फिर उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटर विजन इज़ दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स that need to have features, and these features need to have some classes. Based on that classes we can classify these objects. तो बेसिक ऑब्जेक्ट रिकग्निशन का फ्लो चार्ट हमारे पास क्या हो सकता है कि पहले हम सेंसर्स के थ्रू इमेजेस लेते हैं। तो सेंसर्स जो हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑप्टिकल लेंसेज हो सकते हैं, उसकी बेस पर हम इमेजेस लेते हैं। हम इमेजेस जो हैं मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजेस ले सकते हैं, मल्टीपल जो स्पेक्ट्रल रेंजेस हैं उसमें ले सकते हैं। अल्ट्रा वायलेट हो सकते हैं, इंफ्रारेड हो सकते हैं और RGB कलर्स में हो सकते हैं। हम मल्टीपल एरियाज़ में हम इमेजेस ले सकते हैं। तो हम इसको एज अ सेंसर कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी फ़ीचर जनरेशन करते हैं कि जब हमने इमेज ली तो हम उसके फ़ीचर्स आइडेंटिफाई करते हैं। और फ़ीचर्स क्या हैं वो हम डिस्क्रिप्शन से लेते हैं कि जो डिस्क्रिप्शंस हैं किसी ऑब्जेक्ट्स की, वो उसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम आइडेंटिफाई करें तो हम उससे उसको वो ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइज कर सकते हैं या उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं। क्योंकि जब हम फीचर जनरेट करते हैं तो फीचर जनरेट करने का मतलब ये होगा कि हम उस इमेज को डिकोड करेंगे। उस डिकोड करने के लिए हमें उसको रिप्रेजेंटेशन मोड में लाना होगा। जब उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर हम उसकी डिस्क्रिप्शन लाएंगे। तो जब डिस्क्रिप्शन आ जाएगी तो फिर हम वहाँ से सिलेक्शन करेंगे कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्लासीफायर डिज़ाइन कि हमने अब उसको कैसे क्लासीफाई करना है, क्योंकि क्लासिफिकेशन जो है मल्टीपल मेथड्स की हो सकती है, मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकती है। तो हमारे जो फीचर्स हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हम किस किस्म के फीचर्स ले रहे हैं, तो उनको हम कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए वो उस किस्म के क्लासीफायर्स को अप्लाई करेंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि क्या हमारे जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो बेहतर आ रहे हैं कि नहीं। तो हम सिस्टम एवल्यूएशन करते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स हैं, मैथमेटिकल मेथड्स हैं, साइंटिफिक रूल्स हैं जिसकी बेस पर हम अपने जो क्लासिफिकेशन हमने की उसको वैलिडेट कर सकते हैं कि क्या वो हमारे रिजल्ट्स बेहतर हैं या नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी स्पेशलिस्ट के थ्रू करवाते हैं या ह्यूमन के थ्रू करवाते हैं तो वो रिलेटिव हो जाएगा। लेकिन जब हम मैथमेटिकल टूल्स के थ्रू करते हैं तो उसके थ्रू वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है कि क्या ये एक्सेप्टेबल हैं या नहीं। अब इसके सिंपल बेसिक एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो सकते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ इमेज एनालिसिस हमारे पास, अगर हम स्टार्ट करते हैं सिंपली प्रॉब्लम डोमेन से कि हम किस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसके इमेजेस रिक्वायर्ड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम डोमेन से रिलेटेड इमेजेस लेनी होंगी।
फॉर एग्जांपल हमने कोई ऐसे स्टार्स की इमेजेस लेनी है और उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है जो कि RGB कलर में आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, या तो हमें उसके लिए उस डोमेन से रिलेटेड इमेजेस लेनी होंगी। हम उसको अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड टाइप के इमेजेस लेंगे। या अगर हमने फॉर एग्जांपल अल्ट्रासाउंड इमेजेस लेनी है तो वो अल्ट्रासाउंड इमेज जो हैं वो नॉर्मली ग्रे स्केल में आ रही होती हैं और उसकी एक खास डायमेंशन होती है। तो अब उन इमेजेस को हम यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड इमेजेस को यूज़ करते हैं किसी डायग्नोसिस पर्पसेस के लिए, किसी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए। तो हम उसके लिए हम उस प्रॉब्लम डोमेन से रिलेटेड इमेज लेते हैं। तो हम इमेज जब लेंगे तो इमेज एक्विजिशन हो जाएगी हमारे पास। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई इतनी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होंगी। लेकिन इसके बाद हम क्या करते हैं, हम सिंपल इसके ऊपर प्री प्रोसेसिंग करेंगे। और वो प्री प्रोसेसिंग क्या होगी, अगर हमारे पास उस इमेज के अंदर नॉइज़ है तो हम उस नॉइज़ को रिमूव करेंगे। अगर तो वो स्मूथ नहीं है तो हम उसको स्मूथ करेंगे। उसके एजेस जो हैं वो क्लियर नहीं है तो हम उसके एजेस को आइडेंटिफाई करेंगे। या उसके जो कलर हैं वो बेहतर नहीं है तो हम उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जितने भी हमने आगे से डिफरेंट लेक्चर्स में हमने ये आइडेंटिफाई किया कि हम क्या क्या प्रोसेसिंग कर सकते हैं इमेज के साथ, तो वो डिपेंड करता है हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। उससे रिलेटेड हम उसमें वो वाली चेंजेस करेंगे। तो हम सिंपल जब जाते हैं इस प्रोसेस में तो यहाँ हमारे पास होगा प्री प्रोसेसिंग। तो प्री प्रोसेसिंग के बाद हम जब आएंगे तो इंटरमीडिएट लेवल प्रोसेसिंग क्या होगी, वो ये हो सकती है कि उसकी आप सेगमेंटेशन अप कर दें। अब इमेज स्मूथ भी हो गया, उसमें एजेस भी आइडेंटिफाई हो गए, तो हम उसकी सेगमेंटेशन कर लें कि इमेज में कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसकी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हमने उसकी सेगमेंटेशन कर दिया, सब डिविजन्स कर दिए इमेज के। और वहाँ पर हमने जब आइडेंटिफिकेशन कर दी तो फिर सेगमेंटेशन के बाद हम सिंपल करेंगे रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन। तो जब हमने सेगमेंटेशन कर ली तो अब हम ऑब्जेक्ट्स को बाउंड्री के बेस पर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं या हम उसको उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस पर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो ये टोटली डिपेंड करेगा अब हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। तो यहाँ पर जब हमने सेगमेंटेशन की होगी अगर बॉर्डर की बेस पर, तो हम रिप्रेजेंटेशन भी बॉर्डर की बेस पर करेंगे। और अगर हम रिप्रेजेंटेशन बॉर्डर की बेस पर करते हैं तो फिर हमने उसकी डिस्क्रिप्शन भी बतानी होगी कि ये जो बॉर्डर की रिप्रेजेंटेशन हमने की है इसमें हमारे पास डिटेल क्या है, ये हर एक पॉइंट जो है ये क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। और या अगर पहले 10 पॉइंट्स हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाद के जो 10 पॉइंट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह के हम मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, हाई लेवल प्रोसेसिंग में रिकग्निशन एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो रिकग्निशन हम क्या करते हैं कि हम अब हमारे पास अब ये ऑब्जेक्ट्स तो आ गए हैं, अब हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से जो अगर फ्रूट्स हैं हमारे पास मल्टीपल, तो कौन से एप्पल्स हैं, कौन से बनाना है, कौन से हमारे पास ऑरेंजेस आ रहे हैं अगर इमेज के अंदर इस तरह के डिफरेंट फ्रूट्स हैं। तो हम उसके रिकग्निशन करते हैं और उनको इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब ये होगा कि इसमें हम साइज़ के लिहाज से बता सकते हैं और उसके कलर के लिहाज से बता सकते हैं कि कितने हमारे पास उसमें जो हैं बनानास हैं और उनकी साइज़ क्या है और उनकी जो नंबर्स हैं वो कितने हैं। तो हम इनकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और रिकग्निशन जो है वो टोटली डिफरेंट चीज़ है कि हम उसको आइडेंटिफाई करें कि क्या एक जो ऑरेंज है और एक हमारे पास एप्पल है तो वो आपस में मिक्स ना हो, वो एग्जैक्टली क्लियरली हमारे पास सेपरेटली आइडेंटिफाई हो सकें। तो अगर हम देखते हैं कि जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं उसको कंपेयर करते हैं नॉलेज में, तो नॉलेज बेस हमारे पास इन सारे एरियाज़ में काउंट होगा। और नॉलेज बेस नॉर्मली वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, किसी भी सेगमेंटेशन अगर हम कर रहे हैं तो सेगमेंटेशन से रिलेटेड उसकी नॉलेज बेस होती है कि क्या वो सेगमेंटेशन जो है वो बेहतर है या नहीं। अगर हम प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास एक नॉलेज बेस होगा जिसमें हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होगी कि ये जो हमने इमेज स्मूथिंग की है तो क्या ये बेहतर की है या नहीं। तो इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा तो उसको भी हम कंपेयर करेंगे नॉलेज बेस के साथ। अगर तो वो बेहतर है तो
हम रिजल्ट्स जनरेट कर देंगे। अगर तो बेहतर नहीं है तो हम इस प्रोसेस को दोबारा कंटिन्यू करते हैं, और ये दोबारा किस एरिया से करना है हमने, ये टोटली डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हमने सेगमेंटेशन बेहतर नहीं की तो हम इस प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट करेंगे सेगमेंटेशन से। और अगर हमने इमेज स्मूथनिंग बेहतर नहीं की, या हमने उसके ऊपर जो फिल्टर अप्लाई किए हैं नॉइज़ रिमूवल के वो बेहतर नहीं है, तो फिर हमें सिंपल इस स्टेज से दोबारा स्टार्ट करना होगा। तो हम उसमें चेंजेस करते जाएंगे। तो ये आइटरेटिव किस्म का स्ट्रक्चर है जिसको हम बार बार रोटेट करते जाएंगे और अपने रिजल्ट्स के मद्देनज़र उसको इन्हांस करते जाएंगे। सो व्हाट इज़ देन पैटर्न रिकग्निशन? हम पैटर्न रिकग्निशन के लिए सिंपल एक छोटी सी डायग्राम देखते हैं। सो पैटर्न रिकग्निशन बाय मशीन इन्वॉल्व्स टेक्निक्स फॉर assigning a pattern to the respective class automatically with a little human intervention as possible। तो हम पैटर्न रिकग्निशन में क्या करते हैं, सिंपल उनको असाइन करते हैं उस क्लास के लिए। जिस तरह मैंने स्टार्ट वाले स्लाइड पे बताया कि हम पैटर्न्स लेते हैं, पैटर्न ऑफ क्लासेस लेते हैं और फिर पैटर्न रिकग्निशन करते हैं। तो यहाँ पर हम पैटर्न रिकग्निशन में क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास इमेजेस हैं उनको, उनमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम उन कैटेगरीज में रखते हैं। तो अब ये हमारे पास एक इमेज है जिसमें मल्टीपल किस्म के ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो ये एज ए इनपुट दिया हमने, इनपुट के बाद हमने इमेज की सेगमेंटेशन की, उसके फीचर्स निकाले। जब हमने फीचर्स निकाले तो यहाँ पर हमने उसकी क्लासिफिकेशन की कि किस क्लास के साथ बिलोंग करता है। तो यहाँ हमने आइडेंटिफाई किया कि अगर ये एज ए इनपुट है, इसकी सेगमेंटेशन हमने कर ली, तो हम देख सकते हैं कि ये एज अ बार हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये कब बार के तौर पर है। नेक्स्ट हमारे पास है पैटर्न्स। जब हम इन पैटर्न्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो हमने देखा कि हम वेक्टर की फॉर्म में भी कर सकते हैं। मल्टीपल मेथड्स हैं। पैटर्न्स आर क्वांटिटेटिव और स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सम अदर entity of interacts in the image। ये पॉइंट दोबारा करते हैं यहाँ से। पैटर्न आर क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सम अदर एंटिटी ऑफ इंटरेस्ट इन एन इमेज। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं उसके क्वांटिटेटिव या उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्म बाय वन और मोर फीचर्स। तो ये जो हम डिस्क्रिप्शंस दे रहे होते हैं ये कोई एक फीचर हो सकता है या मल्टीपल फीचर्स हो सकते हैं। तो फीचर्स का मतलब क्या है? अ फीचर इज अ फंक्शन ऑफ वन और मोर मेजरमेंट्स यूज्ड टू क्वांटिफाई अ सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब फीचर क्या है? वो हमारे पास एक या एक से ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम फीचर्स के तौर पर काउंट करते हैं। टिपिकली रिप्रेजेंटेड एज n into 1 मैट्रिक्स फॉर क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शंस। तो अगर हमने क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शंस को रिप्रेजेंट करना है तो वो n into 1 के तौर पर आता है। उसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होती है कि x is equal to x1 x2 until xn एंड स्ट्रिंग एंट्रीज ऑफ स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शंस। तो हम इसको स्ट्रिंग्स और ट्री फॉर स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फीचर्स हमारे पास अब क्या हो सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम उस ऑब्जेक्ट को लेते हैं और उसकी बाउंड्री लेते हैं तो ये हम देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के मल्टीपल फीचर्स हम ले सकते हैं। एक तो इसके जो पॉइंट्स हैं हम इसको काउंट करते हैं कि ये कितने पिक्सेल्स पर है, तो इसके डिस्टेंस हो गए। फिर हमारे पास इसके एंगल्स हो गए कि ये जो एंगल्स आ रहे हैं ये कितने एंगल्स इसमें हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो हम ये थीटा की वैल्यू लेते हैं यहाँ पर। फिर इसमें ग्रिड का साइज़ आ सकता है, फिर इसमें कलर्स आ सकते हैं, फिर हमारे पास इसमें इसकी विड्थ आ सकती है कि ये कितनी विड्थ है इसकी, इस तरह और बहुत सारे। तो ये सारे क्या हैं, उसके फीचर्स आ सकते हैं। हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन हम मल्टीपल मेथड्स से कर सकते हैं। तो अब वो मल्टीपल मेथड्स की हम बाद में डिस्क्रिप्शंस लेते हैं, तो उन डिस्क्रिप्शंस से हम मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस जब हम लेते हैं तो उनको एज अ फीचर हम काउंट कर सकते हैं।
अब इस ऑब्जेक्ट के रिकग्निशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास कितने फीचर्स होने चाहिए? तो जितने मिनिमम होंगे उतना हमारे पास उसका प्रोसेसिंग टाइम कम लगेगा, लेकिन जितने मिनिमम होंगे तो उतने उसको आइडेंटिफिकेशन करने में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वो इस वजह से कि अगर इसमें थोड़ी सी वेरिएशन होगी तो वो टैकल नहीं हो सकेगी। तो इस वजह से ये बिल्कुल टोटली डिपेंड करता है कि हम क्या स्पीड चाह रहे हैं या कम, क्या हम उसमें एक्यूरेसी चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें कितने फीचर्स चाहिए होंगे। सो पैटर्न ऑफ क्लासेस का क्या मतलब है? जब हम ये कहते हैं कि हम उसको क्लासेस में डाल लेंगे, उसके ओरिजिनल क्लास में उसको असाइन करेंगे कि ये इस क्लास के लिए बनाया गया है, जब आप ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे। सो पैटर्न क्लासेस इज फैमिली ऑफ पैटर्न्स दैट शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज़। तो हम क्लासेस ऑफ पैटर्न्स उसको कहते हैं कि जब वो आपस में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। जब हमने स्टार्ट वाले स्लाइड पे देखा था कि पैटर्न ऑफ क्लासेस क्या हो सकती हैं, तो वो हमारे पास हो सकती हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W1, W2 until WM, वेयर M इज़ द नंबर ऑफ क्लासेस। तो अगर हम एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल के कितने क्लासेस हो सकती हैं हमारे पास? वो फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट कलर्स हैं, ग्रीन, येलो एंड रेड। तो अगर ये एप्पल के 3 क्लासेस हैं हमारे पास और इसकी बेस पर हम उसकी क्लासेस बनाते हैं कलर की बेस पर, तो यहाँ पर M का साइज हमारे पास 3 हो जाएगा और जो कलर्स हैं वो W1, W2 और W3 हो जाएंगे। सो सेम हम इसको डिफरेंट एरिया के लिहाज से देख सकते हैं या हम उसको मल्टीपल अदर अप्रोचेस हो सकती हैं। अब बेसिक इसका स्ट्रक्चर जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसका मकसद हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम इसको एज अ इमेजिनरी मशीन रन करना चाहते हैं तो किस तरह होगा? प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इम्प्लीमेंट ए स्टोर सिस्टम फॉर अ फ्रूट कमिंग डाउन अ कन्वेइंग बेल्ट। अगर हम सिंपल पैटर्न रिकग्निशन करना चाह रहे हैं, तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं जो एज अ फ्रूट्स हैं और हमारे पास एक कैमरा है जिसके थ्रू हम इसको इसकी इमेजेस ले रहे हैं या इसकी वीडियो ले रहे हैं, पर अब वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में आ रही हैं और ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये कन्वेइंग बेल्ट है। अब हम चाहते ये हैं कि ये हमारे पास कंट्रोल यूनिट है और ये जो मशीन है इसके पास डिफरेंट किस्म के मूवेबल पार्ट्स हैं जो हम मूव करा सकते हैं, जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को मूव कराते हैं और उसको मूव कराते हैं उसके क्लासेस के लिहाज से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मल्टीपल किस्म के फ्रूट्स आ रहे हैं, ऑरेंजेस आ रहे हैं, बनाना आ रहे हैं, एप्पल आ रहे हैं। अब हमारे पास 3 डिफरेंट किस्म के क्लासेस हैं या जो हम क्रेट्स ले रहे हैं वो आ गए। तो हर एक क्रेट के अंदर हमने एक उसी किस्म के फ्रूट्स डालने हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्रेट जो है एप्पल के लिए, सेकंड क्रेट ऑरेंज के लिए और थर्ड जो है बनाना के लिए। और कोई ऐसा फ्रूट जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इन तीनों से ज़्यादा है तो हम उसको एक एक्स्ट्रा लोकेशन पर डाल रहे हैं। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, जो भी फ्रूट आएगा इमेज उसकी ली जाएगी और जब तक के वो फ्रूट यहाँ तक पहुँचे तो हमने उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो क्रेट नंबर 1 में जाना चाहिए, 2 में जाना चाहिए या 3 में जाना चाहिए या 4 में जाना चाहिए, अगर वो रिकग्नाइजेबल नहीं है तो ये सिंपल हम ऑब्जेक्ट रिकग्निशन करते हैं जब हमें आइडेंटिफाई करना होता है। और क्योंकि हम उसको उसकी क्लासेस में डालते हैं तो इसके लिए इसका क्लासिफिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। सो डिज़ाइन स्टेप्स क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट लोकेटर डिज़ाइन हो सकते हैं, सेलेक्ट सेंस सेगमेंटेशन एल्गोरिथम दैट विल आइसोलेट द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स इन द इमेज। हमें सिंपल क्या करना होगा कि ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना होगा। जब हम इमेज लेते हैं यहाँ पर तो उसका कुछ बैकग्राउंड आएगा और उसके साथ कोई नॉइज़ आ सकती है, तो हमें क्या करना होगा, सिंपल उसके ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश करना है। फीचर सिलेक्शन, डिवाइड विच प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स बेस्ट डिस्टिंग्विश द ऑब्जेक्ट टाइप एंड हाउ टू मेजर दीज। अब हमें डिस्टिंग्विश करने के लिए, उसके ऑब्जेक्ट टाइप को डिस्टिंग्विश करने के लिए उसके क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं और हम उनको कैसे मेजर कर सकते हैं, ये हमें दोनों चीज़ें चाहिए होंगी। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एस्टेब्लिश द मैथमेटिकल बेस ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम एंड सेलेक्ट द टाइप ऑफ क्लासिफायर स्ट्रक्चर टू बी यूज्ड। अब उसके लिए हमें कौन से क्लासिफिकेशन का कौन सा मेथड यूज़ करना है और हम उसको कैसे
उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, क्लासिफायर ट्रेनिंग, फिक्स द वेरियस एडजस्टमेंट पैरामीटर्स, डिसीजन बाउंड्रीज एंड इन द क्लासिफायर टू सूट द ऑब्जेक्ट बीइंग क्लासिफाइड। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम ट्रेनिंग करते हैं क्लासिफायर की, हम देखते हैं कि ये जो क्लासिफायर है क्या ये बेहतर रिजल्ट दे रहा है, अगर तो नहीं दे रहा तो हम उसमें ट्यूनिंग करते हैं, उसके क्लासिफिकेशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ वेरिएबल्स को चेंज करते हैं। जब हम उसको दोबारा रन करते हैं, देखते हैं कि रिजल्ट्स सही आ रहे हैं, अगर सही नहीं आ रहे हैं तो हम उसको दोबारा उसमें वेरिएबल्स में कुछ चेंजेस ले आते हैं ताकि वो बेहतर हो जाए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ द वेरियस पॉसिबल मिस क्लासिफिकेशन एरर्स। अब हम ये देख सकते हैं परफॉर्मेंस मेजर में, अगर हमने परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करनी है कि अगर 100 हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स आए हैं तो उसमें कितने मिस क्लासिफिकेशन हुई है, कितने थे जो हमने गलत बास्केट में डाले या गलत क्रेट में डाले, तो उसको हम इवैल्यूएशन के लिए यूज़ करते हैं। सो फीचर सिलेक्शन हम किस बेस पर करते हैं, द की टू रिलायबल पैटर्न रिकग्निशन इज फीचर सिलेक्शन। गुड फीचर्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, discrimination, feature should have significantly different values for object belong to a different classes। तो हम डिस्क्रिमिनेशन की बेस पर उस फीचर्स को सेलेक्ट करते हैं कि वो फीचर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हों ऑब्जेक्ट्स जो कि डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करें। रिलायबिलिटी फीचर्स शुड हैव सिमिलर वैल्यूज फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम क्लास। अब एक ऑब्जेक्ट के जो फीचर्स हैं उनका साइज़ हमेशा सेम होना चाहिए ताकि हम उसको जब कंपेयर करें तो इजीली उसकी प्रोसेसिंग कर सकें। फॉर एग्जांपल फीचर्स का जो साइज़ है एप्पल के लिए हमने 100 रखा हुआ है, तो उस जो 100 पॉइंट्स हैं तो वो हर एक एप्पल के लिए कैलकुलेट होने चाहिए। लेकिन अगर ऑरेंज है तो ऑरेंज के लिए हम 50 रख लें, तो हम ऑब्जेक्ट जो है हमारा अब डिफरेंट हो गया। तो अब ये ना हो कि हमारे पास कोई ऑरेंज है जिसके फीचर्स 100 हों, तो क्योंकि ऑरेंज के लिए हमने 50 लेने थे और अब 100 आ गए तो इनकी कंपैरिजन में फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाएंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ वेरियस फीचर्स शुड बी अनकोरिलेटेड विद ईच अदर। जो हम फीचर्स ले रहे हैं तो उनका आपस में डिफरेंट होना चाहिए, आपस में डिफरेंट इस तरह होने चाहिए कि जब अगर हम लेंथ ले रहे हैं तो लेंथ किसी ऑब्जेक्ट का फीचर ले रहे हैं, तो अगर हम हाइट ले रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो जो लेंथ हमने काउंट किए थे वो एज अ हाइट काउंट हो जाए, या वो अगर वहाँ पर यूज़ हो रहा है, अगर हम एक्स एक्सिस में कोई वैल्यूज़ ले रहे हैं तो वो एक्स एक्सिस में यूनिक होने चाहिए, ना कि हम कोई और पॉइंट ले रहे हैं जिसमें वो एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ भी आ रही हैं। Small numbers minimize the number of features needed to classify any n pattern. This minimize the complexity of the system. तो हमने जिस तरह बात की थी कि हम जितना कम नंबर रखेंगे तो उतना हमारे पास फास्ट होगा, वो हमारा सिस्टम जो है उसकी कम्प्लेक्सिटी कम होंगी, क्योंकि कुछ क्लासिफिकेशन ऐसे हैं जिस तरह न्यूरल नेटवर्क हो गए तो उसमें हमारे पास अगर ज़्यादा होंगे फीचर्स तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उसके लिए जो नेटवर्क डेवलप करना होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो यहाँ पर हम फीचर्स आइडेंटिफाई करते हैं तो इस बेस पर होने चाहिए कि वो इनको इजीली डिस्टिंग्विश कर सके। फॉर एग्जांपल एप्पल के कुछ फीचर्स यहाँ पर हैं, चेरीज़ के हैं, लेमन है और हमारे पास ग्रेप फ्रूट हैं, तो उनके डिफरेंट पैरामीटर्स हों ताकि हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकें। अब हमने यहाँ पर 2 डायमेंशन में लिया उसके रेडनेस और उसके डायमीटर की बेस पर, तो हम इसको एज अ ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फीचर्स जब हम लेते हैं तो हम उन फीचर्स को एज अ ग्राफ रिप्रेजेंट इस वजह से करते हैं ताकि हम उसको विजुलाइज कर सकें कि क्या ये ऐसे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको हम डिस्टिंग्विश कर सकें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स एज अ वेक्टर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह हमने कहा कि हम फीचर्स जब लेते हैं, जब हमने यहाँ बात की थी कि हम एज अ फीचर उसको कंसिडर करते हैं तो इसको हम एज अ वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं। तो वेक्टर के तौर पर हम देखते हैं कि एक्स
जो हैं x एक्सिस पर x1 और x2 आ जाएंगे और y एक्सिस पर 1 2 3 उसके 3 डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगे। तो x एक्सिस पर हम उसकी पेटल लेंथ को काउंट करते हैं और जो हमारे पास y एक्सिस पर है उसके पेटल की वेड्थ को देखते हैं। और सेम हमारे पास 3 किस्म के फ्लावर्स के टाइप्स आ रहे हैं जिनके कलर सेम है लेकिन उसके जो शेप्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि ये 3 हम अलग अलग पॉइंट्स के साथ अगर शेप्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हम देखते हैं कि इनकी जो फीचर्स हैं वो आपस में मैच हो रहे हैं और वो एक ही लोकेशन पर आ रहे हैं। अब हम इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, वो हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं। तो एज अ वेक्टर हम इमेजेस को अगर लेते हैं जिसमें हमारे पास फेसेस के इमेजेस हैं जिसमें मेल और फीमेल हैं, तो हम सिंपल क्या करते हैं कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में उसकी xi इज इक्वल टू xi फ्रॉम 1 टू 780 84 जो हैं उसके हमारे पास सिंपल उसके डायमेंशंस आ सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि y में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल और मेल की सिचुएशन में, तो फीमेल को हम रेड लेते हैं और मेल को हम ब्लू लेते हैं और ये जो उसके एक्स एक्सिस हैं इसमें हमारे पास उसके मल्टीपल जो फीचर्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 क्लासेस हो गई और ये उसके फीचर्स आ गए एज अ वेक्टर की फॉर्म में। फिर अगर हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में हैं तो नंबर के लिए हम क्या करते हैं कि इन नंबर्स में को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास i इज इक्वल टू 1 to 1000। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 1000 जो हैं जो उसके वेक्टर हैं उसके साइजेस आ रहे हैं और जो हमारे पास क्लासेस बन रहे हैं वो क्या हैं, वो 0 to 9 बन रहे हैं। सो क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या आएगा, एनी क्लासिफायर हाउएवर इज इम्प्लीमेंटेड mainly act to partition feature space into region corresponding to each class and assign object accordingly। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कोई भी हम अगर क्लासीफायर यूज़ करते हैं तो वो फीचर्स स्पेस जो है उनको रीजन में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं ताकि उसके ऑब्जेक्ट जो है उसको इजीली असाइन कर सकें। Performance of a classifier is ultimately limited by overlap of the classes in feature space। अगर हमारे पास कुछ क्लासेस जो फीचर्स हैं वो ऐसे आ रहे हैं कि वो आपस में सेम आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, तो इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। उसकी वजह ये है कि ये जो फीचर्स हैं ये आपस में मैच कर रहे हैं, तो इसकी बेस पर हम उसको डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो हमारे पास लिमिटेशन है क्लासिफिकेशन की वो ये है कि अगर जो फीचर स्पेस है वो हमारे पास लिमिटेड है और वो ओवरलैप कर रहा है तो उस सिचुएशन में क्लासिफिकेशन मुश्किल हो जाती है। क्लासीफायर्स कैन बी कैटेगराइज इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। हमारे पास 2 बेसिक मेथड्स हैं, डिसीजन थ्योरेटिक मेथड्स हैं और स्ट्रक्चरल मेथड्स हैं। तो स्ट्रक्चरल मेथड में हम देखते हैं कि सिंपल स्ट्रक्चरल मेथड में हम उसके जो स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। स्ट्रक्चरल मेथड यूज स्ट्रक्चर रिलेशनशिप इनहेरिट इन अ पैटर्न शेप ऑफ पैटर्न रिकग्निशन। द मोस्ट फेमस ऑफ स्ट्रक्चरल मेथड इज़ फॉर फिंगरप्रिंट मैचिंग। हम मोस्टली जो फिंगरप्रिंट मैचिंग करते हैं तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर मेथड्स यूज़ करते हैं। Structural method can be categorized as follows: matching shape number, string matching and synthetic methods। अब हम मैचिंग शेप नंबर में जाते हैं कि अगर हमने स्ट्रक्चरल मेथड्स को देखना है तो उसमें हम मैचिंग शेप नंबर कैसे कर सकते हैं। यूज शेप नंबर्स टू कंपेयर द रीजन बाउंड्रीज। हम जो शेप को हम जो नंबर असाइन किए होते हैं उसकी बेस पर हम उस के जो रिकग्निशन है वो कर सकते हैं। द डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी के बिटवीन 2 रीजन बाउंड्री A and B is defined as the largest order for which their shape number still coincides। तो हम क्या करते हैं
कि सिमिलैरिटी के जो वेरिएबल है उसको देखते हैं। अगर ए और बी के दरमियान हमारे पास जो डिफरेंस है वो हम काउंट करें एज अ नंबर ऑफ दिस देयर शेप नंबर्स के बेस पर अगर हम उसको काउंट करते हैं। द लार्ज द वैल्यू ऑफ के द मोर सिमिलर द शेप्स आर। अगर के की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो हम ये समझते हैं कि ये शेप्स जो हैं ये सिमिलर हैं। अब हमने ये देखा था कि हम अगर बाउंड्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर और एट डिफरेंट डायरेक्शनल मेथड के अंदर अगर चेन कोड को हम यूज़ करते हैं। तो हमने ये भी देखा था कि हम इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है मल्टीपल मेथड्स से कर सकते हैं। अगर हम 4 डायमेंशन में करते हैं, 4 डायगोनल में करते हैं तो ये आएगा, और अगर 8 में करेंगे तो इस तरह आएगा। अब हम अगर देखते हैं कि ये 4 और 6 और 8 के लिए डिफरेंट किस्म के कोड्स हमारे पास जनरेट होते हैं, तो इस बेस पर हम, क्योंकि जब हम जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर चेंज करेंगे तो उतना उसकी मैचिंग जो है वो इजीली हो जाया करेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ABCDEF जो हैं डिफरेंट किस्म के शेप्स हैं, और हम ये चाहते हैं कि इसकी सिमिलरिटी देखें। तो हम सिमिलरिटी जो है ये शेप अगर 4 की बेस पर हम कंपेयर करेंगे तो 4 की बेस पर, क्योंकि हम सिर्फ 4 डायरेक्शनल ले रहे हैं, तो ये सारे जो हैं इनको अगर हम देखें तो 4 में अगर हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो सारे के सारे एक ही जैसे नज़र आएंगे। लेकिन अगर हम 6 में जाएंगे तो भी हमारे पास सेम ही रिजल्ट्स आएंगे। उसकी वजह यह है कि जो डिटेल्स हैं वो ज़्यादा हमारे पास नहीं आएंगी। अगर हम 8 पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि 8 लेवल पर ए जो है ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट आएगा, और बाकी जो हैं वो मोर लेस सिमिलर वैल्यूज़ दे रहे हैं। क्योंकि हमने यहाँ देखा था कि अगर हम इस डायरेक्शन से इस पर जाते हैं तो यहाँ और डिटेल्स आ रही हैं हमारे पास। जब हम 4 से 8 की तरफ जाते हैं तो जितनी ज़्यादा डिटेल्स होंगी तो ज़ाहिर है हम उसकी कंपैरिजन इजीली कर सकेंगे, लेकिन वही बात है कि वो टाइम ज़्यादा लेगा। सेम अगर हम 10 पर जाते हैं तो 10 में हमारे पास और ज़्यादा डिटेल्स आ जाएंगी। इस वजह से उनके जो शेप की इंफॉर्मेशन है हम उसकी बेस पर उसको इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हाँ ये आपस में डिफरेंट हैं। और अगर हम 14 पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि ये एक ऐसे वैल्यू है जिसकी बेस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सारे के सारे अलग अलग हैं। सो मैचिंग शेप नंबर एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? मैचिंग शेप नंबर सूट्स द प्रोसेसिंग स्ट्रक्चरिंग सिंपल ग्राफ स्पेशली बिकम्स by the line combination, can solve rotation. That is the question, that if we can solve this rotation, so this rotation can also be solved by taking the angles of it that we already talked about in the last lecture. Matching shape number, mostly the graph outline shape similarity also make completely overcome. So what we do in this shape matching, we normally look for the outline of the object. So we use the graph theory for outline. The displacement question definitely may overcome, or if we have this displacement, this transformation from one place to another, then this can also be compensated by match number if we want to compare the shape of the numbers. So there are some disadvantages. It cannot use for hollow structures. If there are hollow structures, we cannot use this shape. Scaling is the shortcoming which needs to change, perhaps coordinates the alternative means. Then again, the intensity we cannot compare. Mirror problem, if there is something that is mirror of one, then we cannot match that. The color is unable to recognize, and for sure, as we are using only the boundary, so we cannot make the color recognizable. So the next thing was string matching, that we here learned that we have basic methods, which is a matching the shape number, then we have string matching, and then we have synthetic methods. So here what we do, we just summarize the string matching. Region boundaries are
coded into strings. So what we do, we put this numbers into a strings. If we let m represent the number of match between two string A and B, then the number of strings that do not match is given by q is equal to max absolute value of A and absolute value of B minus m. Based on this simple measure of similarity between A and B is the ratio of R is equal to m by q, and we can also represent that m is divided by q, because q we already know that this is, we can draw it from here. So the large value of R gives the best match. So again, then we have the synthetic methods, the most widely used structural method based on set of pattern preemptives. And then what we do, we make the grammar set of rules that governs the interconnections, and recognizers called an automata. So we also use the automata theory for it, whose structuring is determined by a set of rules in the grammar, can be configured as a strings or trees. So we can use this as a strings and trees. So in synthetic recognition for strings, what we do, when dealing with strings, the grammar is defined as the for tulip. तो हम यहाँ पर simply अगर ग्रामर हमने डिफाइन करना होगा तो उस ग्रामर के लिए हम सिंपल उसकी डिफिनेशंस देते हैं. G is a grammar and that is n summation p and s. So what we have an infinite set of variables called non-terminals. Then we have this summation finite set of constant called terminals, and then p is the set of rewriting rules called productions. S in n the starting symbol, n and summations are required to disjoint the sets. So this is our shape, and what we do, we make this grammar for it. So we define that these are the basic grammar for if we have something like this, then we call it as a. We have something like this, then we call it as a B, and then if we have something like this, we call it as a C. So what we have then, G is the basic grammar for it, which is n summation p and s. So n is a, b and s. Summation is a, b and c, and so on. We can define all the properties from here. So this is the object, this is the skeleton of it, and then we have the preemptive structure for it. And as we talked about it, that once we have the grammar, then what we can do, we can use the automata, and for using this automata, we can recognize what are the basic automata connections that we can make, that the strings that we can recognize. So based on that automata, then we can use this synthetic recognition of a tree in a form of a tree. So here we add another variable, that that's why we call this as a 5 tulip, and this is the ranking function that denote the number of direct decontents. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली कि हम इसमें एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ करते हैं, और उसके लिए हम जो हमारे पास ग्रामर है हम उसको डिफाइन करते हैं. सो ट्री ऑटोमेटा, एंड इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो इस डायरेक्शन में हम आते हैं तो उसको ए बी के साथ, और अगर एस से शेप हो तो उनको सी के साथ, और डी और ई के साथ. तो हम फिर सिंपल उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज अ प्रोडक्शन रूल्स. Then we have this other classification method that is called decision theoretic methods, and in this method what we do, decision theoretic methods are based on use of decision or discriminant functions. So what we do, we use this discriminant functions. The basic problem is to find m decision functions. So what we do, we want to find m decision functions for it, where d1x, d2x, and until dmx, where the property that if a pattern x belongs to class wi, then dix shall be greater than djx, and where j is equal to 1, 2 till m, and j is not equal to I. So this should be different. So this
states that unknown pattern X belongs to the ith pattern class if upon substitution of X into all decision functions di of X yields the largest numerical values. Ties are resolved arbitrarily. So here what we do, we just identify that dix is greater than dij, and m is our number of different variables, the objects that we are using. So these objects are actually in form of features. So these features we just represented as multiple features of taking this for this object, and then what we do, we identify that if this belongs to a specific class or not. So let each pattern class be represented by a mean or prototype vectors. So mj is equal to 1 by nj, and the summation of x belongs to mj, wj, and w is our classes, and we make the summation of x until j is equal to 1 to till m. So we move this j, and then we find out if this x belongs to some specific class or not, where nj is the number of pattern vectors from the class wj, and the summation is taken over these vectors. Using the Euclidean distance, class assignment can be determined using the following formula. dj into x is equal to x minus mj, absolute values of it, j is equal to 1 to till m. So from starting from 1 to m, pattern x belongs to the jth pattern class if upon substitution of x into all decision functions djx yields the smallest numerical value. Ties are resolved arbitrary. तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं कि हम उन वैल्यूज़ के जो डिस्टेंस है उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है, अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट को किसी डायमेंशनल स्पेस में, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो हम उस ऑब्जेक्ट्स का एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से उसके यूक्लिडियन डिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं. तो अगर तो वो ऑब्जेक्ट सेम क्लास से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर तो हम उसका डिस्टेंस आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ बिलोंग कर रहे हैं तो उसका यूक्लिडियन डिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे. तो हम सेम फीचर्स वाले ऑब्जेक्ट्स को उनको आपस में उसका डिस्टेंस आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, लेकिन जब जो बाकी फीचर्स आएंगे तो उनके साथ डिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें कितना डिफरेंस है, ताकि हम उनको सेपरेट कर सकें, अलग क्लास में डाल सकें. सो मैचिंग मिनिमम डिस्टेंस क्लासिफायर वर्क बेस्ट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन मीन इज लार्ज compared to the spared or randomness of each class with respect to its means. So yields optimal performance when the distribution of each class about its means is in the form of a spherical hypercloud in n-dimensional pattern space. In practice, these constraints do not occur very often unless the designer control the nature of the input. So what is the optimum statistical classifier normally that we use is used on Gaussian filter. So Gaussian pattern classification, usually based on a bias classifier for Gaussian pattern classifications, but can be generalized to any probability density function. Most widely used approach for classification of satellite imaginary. जो हमारे पास satellite imaginaries आ रही हैं उसके लिए हम normally इसको use करते हैं. Bias rule status that each object should be assigned to a class that produce the minimum condition risk. This can be quantitatively evaluated using the following formula. तो हम क्या करते हैं बायस रूल स्टेटस में कि हम सिंपली ऑब्जेक्ट्स को एक ख़ास अलग क्लास में रखते हैं, उसको क्लास असाइन करते हैं अगर तो वो मिनिमल कंडीशनल रिस्क प्रोड्यूस करे.
तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है कि डी जे ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स डिवाइडेड बाय डब्ल्यू जे इंटू पी डब्ल्यू जे। तो डब्ल्यू हमारे पास उसमें क्लासेस आ रही हैं, j इज इक्वल टू 1 to m, where a pattern vector x is assigned to a class wi, हम उसको wi के लिए असाइन करते हैं if dj x is greater than यहाँ पर di है, अगर di x is greater than dj x for all j is not equal to I। तो हम सिंपल क्या करते हैं कि हम उसको क्लास में असाइन करते हैं अगर तो हमारे पास इस फॉर्मूले के लिहाज से डी जे जो है वो इक्वल हो, सारे वैल्यूज़ के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं और फिर हम जो एक इंडिविजुअल वैल्यू को लेते हैं जो कि x i हो सकता है उसके लिए, तो उसकी जो d की वैल्यूज़ हमने आइडेंटिफाई की थी, ये वाली वैल्यूज़ जब हम आइडेंटिफाई करते हैं हर एक ऑब्जेक्ट के लिए और फिर हम उसको आपस में कंपेयर करते हैं, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो सिंपल देखते हैं कि कौन से वैल्यूज़ ग्रेटर हैं दूसरे से। सो इफ़ पी एक्स divided by wj is assumed to be Gaussian probability function, that is djx, simplifies the minimum distance classifier. So that is djx is equal to x of t mj and minus 1 by 2 mj power t mj into mj, and j is 1 to m, where mj is the mean vector of each density, and this mean is calculated by mj is equal to 1 by n, and now we make the summation of x. X belongs to start from wj, and nj is the number of pattern vectors for the given class. So the next method is neural network. So neural network is normally to have this supervised kind of learning, and here what we do, we have different nodes, and in these different nodes we assign the input values, and these inputs are actually the features. So we assign one feature, so this is our vector size. Okay, so we assign one feature, and if for example we have feature size is 100, so the input nodes are normally as 100 we call it, so we give every feature, and then we want to identify to which class it belongs to. So if there are for example 4 classes, then we have output as a 4 classes, and these intermediate layers, this can be connected, fully connected, partially connected, it depends on our network design. And then there are different kind of methods that how do we calculate the values inside these nodes. So the neural network is a collection of interconnected identical nodes or processing elements. So if this is one node and we define one node as there will be connections from every node coming from the previous layer. So this is one layer and this is another layer. So if we define that all the nodes should be connected to this one from the previous node, previous layer, this is the previous layer, then in that situation all these nodes in this layer should be identical, so that we can have the calculation easy. Otherwise it will not work properly. So that's why we call it that these nodes should be identical. So so in every layer this should be identical for the processing purpose. But if we want to design a neural network, then this is totally depending that if we want to have less connections or more connections, there are a lot of discussion about it, that how many layers do we need and how to connect these nodes, and then how to select these threshold values for passing the value to the next layer. And the classes are normally how many classes do we need. For example, in the fruit example, we have 3 different kind of fruits, for example apple, orange and banana. So then these classes should be these
3 classes only, and the features that we have, this is totally depending how many features do we want to give as an input. So usually implemented by a digital simulation, they either use software simulation or DSP chip to emulate parallel computing. Advantages require less input of knowledge, capable of implementing complex patterns of feature space, enable to high performance parallel processing implementation. So what we do, there are some advantages and there are some disadvantages. Extensive amount of training required. So this is normally what we do. We need to have these intermediate points where there are some variables that are normally used, which is, we call it as a weight values. So these weight values are normally tune up. So these, for tuning up, what we need to make it the training process much stronger. So we make this training process again and again, and after that what happens that these values, these weight values, they become stable. So if this becomes stable, then we can have a proper output. It also depends. Then that's why this is a lot of training we need to require so that we can have this weight values stable. This is a slower operation, so because there are a lot of calculations on every node, so that's why if the feature size is very big, then this nodes will also be a lot accordingly, and then the processing will be also need a lot of processing power. So the digital understanding of the detailed understanding of the decision making process is not available. So how the decision took place, if we have 10 layers and we have 1000 nodes in every layer, then there is a lot of calculation and we cannot explain all this, that how is these results generated. We just need to run it many times and then see if the results are proper, then this network is okay. So that's why what we need this training. So the weights functions of neural network are taught to it by using training patterns. So that is that's what I was talking about here, that the training required a lot, and for this training what we do, we make this weighting function. So what we do, we have this weighting variable, weights we call it, and these weights are normally we assign the values after training. Training pattern is one of the particular input vector and it corresponds target vectors. There are several methods for training a neural network. The most common of the pattern recognition, backpropagation training. So there are many methods, but one of them is backpropagation. What we do, once we go through the results, so what we take the results and we want to find out what are the possible weights that can be assigned to reach to the specific input. So if we start from the class and then we go back to the object. So backpropagation, it's this method that if we apply, this is a journal formula for it, then we can have this backpropagation method. There are many other methods for object recognition. For instance-based methods, there are k-nearest neighborhood and SOM, self-organizing maps, and there are some decision trees, and there are kernel methods where the important famous one is SVM, support vector machine. There are clustering methods, k-means, and then some other methods we use in artificial neural network, perceptron, and then also self-organizing maps is one of the part as a artificial neural network. And then we also have deep learning and some other machine learning methods for object recognition. So there are a lot of things which we can use after we have the images, and these images we perform some processing on it. So pre-processing, and this pre-processing is to remove the noise, to remove to enhance the edges, to have some clear objects, and different kism smoothing and different kism of
different types of filters that we can apply. After that, we have segmented image. So segmentation, what we do, we take the representation and description of it, and then after that we just normally have this classification method, that what are the different classes that we can assign. So this is our lecture, today's lecture, and we summarize some of the basic pattern classification method, and we learn that how we can have this object classification. There are many methods, and we have some kind of review of it. So we can use this once we have some specific application. So according to our application, we can select the classification method, and also according to our application, we can have this representation and description of the objects. So we summarize, we finalize our lecture here, and inshallah you will learn some basic things in this image processing. It's not in very detail, it's a bit of overview of it, but once you want to have detail of it, then you just need to have some implication for it. So if you have a specific target that you want to identify some iris information, so for that you have the basic idea that what do you need, how do you implement it, and then how to take the features of it, and then how to use it. So we conclude our lectures here, and I hope you learn some basic things in the image processing. Allah Hafiz.